On the count of three. 1, 2, 3. Thank you. Ma'am's teaching style was perfect, awesome. All interacted, all have interacted, and we enjoyed a lot. And we have learnt that how to save us and save others. आपने सबसे पहले डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया, मतलब सबका पहले अटेंशन गैदर किया एंड देन स्टार्ट किया, एंड वो बहुत इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग सेशन था। डिफरेंट लोगों में इसलिए एक नॉर्मल सेशन होता है, बस पीपीटी चला के बता के चले जाते हैं, बट आपने सबको इन्वॉल्व किया तो इसके कारण इट वाज कि लोगों का ध्यान था। तो लेट आई बट आई विश आई कुड हैव जॉइन फ्रॉम द स्टार्ट एंड स्टार्टिंग में आपने जो ओपन होने के लिए जो सेशन दिया लाइक डांसिंग एंड एवरीथिंग सिंगिंग वगैरह, दैट वाज रियली इंटरैक्टिव एंड रियली गुड. चिल्ड्रन नीड सच काइंड ऑफ सेशंस सो दैट वो ओपनली बात कर सके, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर in such a mood that they don't talk in front of public, so it is most required, and it was really good and it was really helping. I wish I could join your team and be there for anybody else who needs my help. The workshop was very good, as well as it is more interactive, and this kind of a workshop gives another view to deal with the students and understand their problems. When we sit at the one side, we are having our own opinion, and we do not consider some issues related to the students. But such kind of workshop helps to understand the students' issues in both ways. And I am thankful to all for giving such kind of a workshop, and which was very helpful for my faculty and institutes also. Thank you very much. I think it was a wonderful session, and by this students will really know like how to save others and save themselves. I want to thank you, ma'am, for accepting this and teaching my students some values which are other than the textbooks. Thanks. It is very useful activity for the teacher as well as the parents. I have 2 daughters. They are about 24, but it is useful to handle the student by taking the mentality into consideration along with the teaching part, how they are strong technically as well as the mentally. Definitely, if you are parenting the student by taking all these points into consideration, it helps to improve overall performance of the student as well as the college. This program is arranged for teachers how to deal with the students. But when I came in this program, so whatever the things discussed here, I found that these are too much helpful for me, because my child is just now he is entered in the 13th age, and he is facing so much problems, that is study problems, emotional problems and so on. So when I came here, these points are too much important for me and for my husband. So I had taken number from Iron Man, and definitely I am going to meet her, because when he is not scoring in the school, then we are shouting on him, why you are not studying, come study, read this and so on. But now I got that, I realized that he is no need to shout. We have to give him rewards. We have to promote. Yes. This is your concern. This is your concern. This is a mother heart. The message I wanted to give. And teachers also should take the students as in parenting mode, so that they can be very much free with us and they can share their experiences with us. So this is very important. So being a teacher, I will get a good positive approach in me, so that I can do better parenting for them. Thank you very much. Thank you, Manjusha and Shizu, for conducting such a wonderful workshop in this campus. Already, Manjusha have taken one workshop for students, and after both the workshops, I find this is necessity for students as well as teachers both, because students are also there who don't understand that they seek help, they are into some problem, they don't realize. So someone should be there who can identify the problems and who can at least trigger them. You seek help from someone wherever they feel comfortable. It might be the teacher guardian, it might be parents, it might be friends, someone. Right? And on teachers' side, they are also dealing with something. Right? Some teacher is dealing with something, enters into the classroom,
and then the performance in the classroom is based on what the teacher is dealing with, right? At a time, students also have some frame. This teacher is like this, and they label teachers also, right? And they, after that session, they will look at the teachers from that frame itself. And thank you. And I hope that we'll continue with these sessions in this campus and have a better society. Thank you. Manjusha ma'am is very cheerful in nature, and she's very, interactive with her students, and herself also is very charming and cool person. And हमारा जो सेशन था वो बहुत ही लाइक लेक्चर टाइप नहीं था, और बहुत इंटरैक्टिव सेशन था, एंड वी एंजॉयड अ लॉट and learned how to present ourselves in public, and मतलब stage daring आती है, and ma'am make sure कि everyone speaks their heart out, and it is very important to take such sessions because आज के generation में कोई ऐसे बहुत shy type और ऐसे होता है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं फ्रेशर स्पेशली, सो उनको एनकरेज करने के लिए मैम इज द बेस्ट. सो ऐसे सेशंस करते रहो मैम, यू आर गुड, यू आर बेस्ट. थैंक यू. आज एक्चुअली जब मंजुषा मैम ने जब क्लास में हॉल में एंट्री किया तो एक्चुअली ऐसा लगा कि कन्वर्ट लेक्चर बट मैम ने जब स्टार्ट किया, जब बोलना स्टार्ट किया, हमने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, तब ऐसा लगा नहीं आज का सेशन एक्चुअल में सबसे बेस्ट सेशन था. भूख लगी मैं कुछ सुनता नहीं, बट आज का मैम का लेक्चर सच में ऐसा भूख लगी सुबह से, बट आई वाज लाइक मैम और थोड़ी देर आप बात कर लीजिए, मैं वेट करूंगा आपके लिए. It's a very kind of very supportive feedback for you and our institute, because institute has also taken a long step to call you here and we got you here. So thank you very much, Beta. Thank you very much. Love you, Beta. Little bit happy with my personality or my resume, but I would like to improve my practical skills of practical thinking about our future vision. What will I need to visualize about our future, and improve my development skills for my career. Very good. Exercise was based on the things you have told, ma'am, and I think that this exercise wasn't that good for me because I personally don't do this. If I have a crush or I like someone, I directly go up to that person and tell them, because maybe if I tell them, there's a chance that there will happen something. So that's all. And at least convey the message to the other person and see what happens next. Okay. हर स्टूडेंट के लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पे उन्हें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू. सो ऐसे टाइम पे ना सबको ज़रूरी होता है कि सेमिनार्स हो या कुछ गाइडेंस मिले. सो सेम टाइप ऑफ गाइडेंस आज हमें मिला है. हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर इंगोले सर ने ये सेमिनार अरेंज किया जहाँ पे मंजूषा मैम थे. उन्होंने ऑलमोस्ट 3 आवर्स का सेमिनार किया है. इसमें उन्होंने हमें बताया कि हमें किस तरह से हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, साथ में ही किस तरह से माइंड और हार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन करके किस तरह से हमें लाइफ में प्रोसीड करना चाहिए, किस तरह से फोकस रहना चाहिए, किस तरह से क्लियर रहना चाहिए. तो जब भी हम किसी बड़े मुकाम पे जाते हैं या जाने के लिए कुछ करते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम फोकस रहे या हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे रहे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी स्ट्रेंथ, मेंटली स्ट्रेंथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ, साथ ही साथ जो डिप्रेशंस, अगर हमें फेलियर मिले
बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सक्सीड करने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और उसमें हमें बहुत सारे फेलियर्स आते हैं। मैं भी उनमें से हूँ जहाँ पे मुझे बहुत सारे फेलियर्स आए। मैं भी डिप्रेशन का शिकार थी। मैंने ये बात कहीं कमिट नहीं की, बट मैं आज करती हूँ कि मैंने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट करने का भी कोशिश किया था, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज के सेमिनार से और ये मोटिवेशन मिला कि नहीं, हमें स्टॉप नहीं होना है। ठीक है, फेलियर है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ, और इन सारे कॉम्बिनेशन को मिला के हमें आगे बढ़ना है, लाइफ में सक्सीड करना है। मी स्टार्टिंगचा प्रोग्राम पण तुमचा अटेंड नाही करू शकली. हॉनेस्टली जे आहे माझ्या मनामध्ये ते मी बोलून देते. तर एकदम अचानक आलं की नाही वाटलं की नाही प्रोग्राम अटेंड करायला हवं, बिकॉज सरांनी पण आम्हाला सांगितलं होतं की खूप चांगला प्रोग्राम आहे, स्किल डेव्हलपमेंट आहे, करिअर काउन्सिलिंग पण आहे, त्यामुळे आली मी इथे. तर सुरुवातीला तुमची थोडी एक भीती वाटली हॉनेस्टली, तुम्ही जे बोलत होते त्याबद्दल. बट जसं तुम्ही म्हटले की समोर या, आणि आमच्यामध्ये खूप डेअर आहे, आम्ही खूप म्हणजे असं नाटक वगैरे खूप साऱ्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये पार्टिसिपेट करून आहोत. तर ते एक असतं की नाही जायचं आहे तर जायचं आहे, प्रूव्ह करायचं आहे समोर. देन तुम्ही ते रॅम्प वॉक करायला लावलं आणि तेव्हा मी बोलले पण तुम्हाला सरळ की नाही, कॉन्फिडन्स दाखवायचा होता मला, आणि त्याच्या मागचं मोटिव्ह काय असेल ते तर तुम्ही मला नंतर सांगणारच आहात की का बरं तुम्ही तिथे मला चालायला लावला. पण एक होतं की नाही, कॉन्फिडन्स दाखवायचा आहे, चालायला लावला आहे तर ते करून दाखवायचं आहे. आणि माझा एक एम क्लिअर नाही आहे खरं सांगायचं म्हटलं तर. आणि अभ्यास म्हणजे अगोदर खूप चांगली होती, बट जसं 10th झालं माझं त्यानंतर थोडं म्हणजे वीक झाली आहे मी. 10th खूप म्हणजे शार्प होती आणि क्लासची टॉपर होती मी. तर ते 10th नंतर थोडं माझं ते खूपच कमी होत चाललं आहे. तर एक आहे की एम माझा फिक्स नाही आहे. एक असं आहे की मला MSc करायचं आहे, देन असं होतं की MSc नाही करायचं, देन MPSC करायचं आहे. मग ते असं वाटतं की थोडं हार्ड आहे, खूप एवढे सारे स्टुडंट असतात, ॲक्च्युली करायचं तर काय करायचं हे माझं सिरियसली फोकस आहे की मला कळत नाही की मी ॲक्च्युली करू तर काय करू. आणि जे म्हटले तुम्ही की फिजिकली आणि मेंटली स्ट्रॉंग म्हणजे काय आहे, तर माझं एक दोन्ही व्ह्यू आहे. फिजिकली आणि मेंटली मी स्ट्रॉंग आहे, आणि समहाव काही सिच्युएशन्समध्ये किंवा काही असे मुवमेंट्स असतात की त्यामध्ये मी खूप वीक पडून जाते. तर मला ते तुमच्याकडनं एक मोटिवेशनल किंवा एक म्हणजे तुमच्याकडनं माहिती हवी की ॲक्च्युली करायचं काय, आणि थोडं एक इन्स्पिरेशनल नहीं का ते बोलू शकते ते मला हवं आहे. आय नीड इट सीरियस. एक्चुअली मैम आज जब आप आए तो ऐसा लग रहा था कि आज कुछ नया समथिंग हमें मतलब सीखने के लिए मिलेगा. एक्चुअली सब ऐसे मैम सर आते हैं जो बताते हैं कि काउंसलिंग कैसे करना चाहिए, अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड करना चाहिए, कैसे कुछ करना चाहिए. तो लेकिन आज का जो था थोड़ा डिफरेंट था. मतलब स्टूडेंट में ग्रुप बनाना, उनके साथ खेलना, उनके साथ अच्छे से बातें करना, उनके साथ मतलब डांस करना, कुछ डिफरेंट था. तो जब आपने मुझे स्टेज पे बुलाए थे तो कुछ लगा था कि कुछ एक्टिविटी करेंगे, बट जब आपने बोला कि चल के दिखाओ तो सोच में आया कि लोग क्या बोलेंगे. ये मैंने आपसे कहा भी था कि लोग क्या बोलेंगे. फिर भी आपने पूछा कि हाँ चलना है. हाँ, फिर मैंने कहा कि हाँ मैंने चला. लोगों को देख कर भी मैंने चला. मतलब एक उसमें से करेज आया कि नहीं, लोग क्या सोचते हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, अपनी नहीं है. तो बस आप डू करते जाओ और अपना फ्यूचर में जो भी फोकस है वो करो. मेन यानी मेरा तो अभी फोकस है कि मैं MSc करूँगी, बट अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम दी हुई हूँ तो पता नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ लगेगा नंबर. तो मेरा तो ऐसा ही कि फ्यूचर में अच्छे कॉलेजेस में MSc करके कुछ फ्यूचर में अच्छा करना है और जो भी अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है. तो मैम आज के आपके लेक्चर से यही एक समझ में आया कि खुद को कभी स्टॉप मत करो, चलते रहो आगे. माई सेल्फ अमन खोगरे. सबसे पहले मंजूषा मैम को बहुत थैंक यू फॉर दिस सेमिनार. मैम ने बहुत ही अच्छे से हमें कोऑर्डिनेशन लिया है हमारे साथ और बहुत ही अच्छा हमें डेवलप किया है क्रिएटिव फील्ड्स में या कम्युनिकेशन में, या जैसे सेमिनार लिया है, टास्क जैसे दिए थे मैम ने, उस हिसाब से बहुत ही अच्छे से हमें कम्युनिकेट किया है और बहुत अच्छा प्रोग्राम था. थैंक यू. 2 घंटे में विज़न डिसाइड हो जाता. तो ऐसे जैसे क्लासेस होते तो सबकी एक विज़न की क्लासेस होती, क्या अपना विज़न डिसाइड करो और जाके भी गोल कर चुके. लाइफ इज़ वन बुक. मेरा मानना है कि लाइफ एक प्लान बुक है और इसको अपने राइटर किसी और को बना के, जिस दिन अगर अपन राइटर अपन खुद बन जाए तो ये बुक नहीं रहेंगे, एक नोवेल बन जाएंगे जो शॉप में अच्छे पैसे दे के खरीदे जाते हैं. बाकी आप लोग सब अपनी रफ बुक समझ के उसको टाइम पास करके निकालते रहते हैं.
और दूसरे को ब्लेम करते रहते कि मम्मी ने ये नहीं किया, पापा ने हेल्प करी रहती, या फिर किसी ने सपोर्ट करा रहता, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गया रहता। आज का जो सेमिनार रहा बहुत ही बेहतरीन रहा मेरी नज़रों में। खैर इससे एक चीज़ समझ में आ गया कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारी कमियां हैं उन्हें सुधारना है, उन्हें इम्प्रूव करना है। आज के सेमिनार में जो मैडम ने बताया कोशिश रहने यही रही कि बहुत ही अच्छा करना है। कन्वर्सेशन गैप जो होते हैं वो भी सुधारना, सीखना, समझना, सब इस तरीके से अच्छी लगी मैम। आप में सबसे अच्छा मुझे एक क्वालिटी लगा वो ज़िद मैम आपके अंदर। बच्चे अगर सुन नहीं रहे फिर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसको जाके अराउज़ करना, उसके अंदर का कंटेंट निकालना वो। और दूसरी चीज़ जो ये सेशन से मुझे पता चली कि वो क्या हुआ कि जो हम बाहर से लोगों को देखते हैं बट अंदर क्या चल रहा है कभी नहीं देखते हैं। तो मेन मैम वो, और वो भी मैम कुछ लोगों को ही देखना आता है। जैसे टीचर्स जो ज़्यादातर लोगों से गो थ्रू जा रहे हैं उन्हीं को पता रहता है कि बंदे के अंदर ये चल रहा है। नॉर्मल लोग ध्यान नहीं देते कि मतलब जैसे लास्ट डायरेक्शंस हुआ, ये सब हुआ, जिसको पता रहता है वही करता है। और बस ये मतलब काफ़ी हेल्पफुल था और मतलब अच्छा था।